Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter skewness. Now, what do we understand by the term skewness? So, skewness is nothing but what? Lack of symmetry or asymmetrical distribution of data is called as skewness. So, we write over here the meaning of skewness. Lack of symmetry is called as skewness. Or we can also say asymmetrical frequency distribution of data is called as skewness. Now, we have different types of skewness over here. The first one is, we can say, zero skewness. Zero skewness, name itself suggests zero skewness. Skewness का मतलब क्या है? Lack of symmetry. अच्छा, but जब मैं बोल रहा हूँ zero skewness, the meaning of that is what? The data will be symmetrical. क्योंकि skewness का basic definition है asymmetrical frequency distribution of data is called as what? Skewness. तो zero skewness तब होगा जब वो asymmetrical नहीं symmetrical होगा. So यहाँ पे zero skewness के लिए when the frequency distribution is having symmetrical distribution of data is called as zero skewness. We have the second term over here that is called as positively skewed. So यहाँ पे लिखेंगे when the frequency distribution is asymmetrical and the tail is longer on the right side then it is positively skewed. एंड यही चीज अगर नेगेटिवली स्क्यूड लिखा यहाँ पे द थर्ड वन इज नेगेटिवली स्क्यूड. सो यहाँ पे आएगा व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is asymmetrical and the tail is longer on the left hand side or left side of the data बोल सकते हैं
then it is called as negatively skewed. And one more thing we need to write कि अगर ये positively skewed है and ये negatively skewed है, so in case of positively skewed, we can say mean is greater than median is greater than mode आ जाएगा. एंड जब ये चीज हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड, सो इस केस में आ जाएगा मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन. सो विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. So now we just saw three different types of skewness, that is zero skewness, positively skewed and negatively skewed. ठीक है, तो उसको समझने के लिए we write over here as zero skewness and we'll just see over here is, if you see यहाँ पे the data which is there is called as what? Lack of symmetry नहीं है यहाँ पे, मतलब it is symmetrical है. Since यहाँ पे it is symmetrical, तो इसको क्या बोलेंगे? Zero skewness. Then we have over here positively skewed और पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं. पॉजिटिवली स्क्यूड बोला या पॉजिटिव स्क्यूनेस बोला, इट इज वन एंड द सेम. सो यहां पे लाइकवाइज अब यहां पे जो है दैट टेल इज लॉन्गर ऑन द राइट हैंड साइड, सो इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस. एंड यही कंडीशन फॉर नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिवली स्क्यूड बोला या नेगेटिव स्क्यूनेस बोला, इट इज वन एंड द सेम. बट इस केस में द टेल इज लॉन्गर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो ये लॉन्गर टेल है देन योर राइट साइड. तो लेफ्ट साइड वाला जो टेल है वो ज्यादा बड़ा है देन योर राइट साइड. तो ये हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड. एंड यहाँ पे इट इज सिमेट्रिकल. सो इस केस में वी कैन से इट इज मीन विच इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू वी कैन से मोड. इन दिस केस वी से इट इज मीन विच इज ग्रेटर देन द मीडियन विच इज ग्रेटर देन द मोड. एंड यहाँ पे इट इज योर मोड विच इज ग्रेटर देन द मीडियन then mean. Now we'll make a note of this part. Now skewness can be found with the help of two methods. The first method is, so we write it as Karl Pearson coefficient of skewness, which is denoted as SKP. Yes, SK is for skewness and P
तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसलिए उसको शॉर्ट में लिखा जाता है एज व्हाट, एसकेपी. नाउ दिस इज बेस्ड on the concept of mean, mode and what, standard deviation. So the formula over here is mean minus mode upon standard deviation. This is the formula, and we say mean is denoted by x bar, mode is denoted as z, and standard deviation is denoted as what, sigma. So mean minus mode upon standard deviation will give me the value of what, coefficient of skewness, that is by what, Karl Pearson. So we say Karl Pearson coefficient of skewness is based on what, mean and mode and standard deviation ka concept. Now we also have one more condition. There is something called as empirical formula, or we say it is called as relation between mean, median and mode. So the relation is mean minus mode is equal to 3 times of mean minus median. We can say it is x bar minus z is equal to 3 times of x bar minus m. So in short you can say mean median mode के लिए जो relation है वो है mean minus mode is equal to 3 times of bracket mean minus median. So in short you can understand by considering this value as MIMO. शॉर्ट में मिमो मतलब मी मो, तो मी जो है दैट इज फॉर मीन, मो जो है दैट इज फॉर मोड. सो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, हम याद रखेंगे मिमी, मतलब यहां पे मी मतलब पहला मी जो है वो मीन के लिए है एंड सेकेंड मी जो है दैट इज फॉर मीडियन. सो ये हो जाएगा मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन. सो इन दैट केस एसकेपी जो है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. सो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम अपॉन सिग्मा. सो ये भी हो जाएगा एस के पी का वैल्यू. सो दिस इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे बेस्ड. नाउ फॉर दिस अगर मेरा एस के पी इक्वल टू 0 आया, यस, तो इस केस में वी से दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सिमेट्रिकल. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन अगर बोला कि फाइंड द नेचर ऑफ द स्क्यूनेस, तो इट विल बी व्हाट, सिमेट्रिकल, मतलब 0 स्क्यूनेस रहेगा उस टाइम पे. सो सिमेट्रिक आ जाएगा. अगर एस के पी इज ग्रेटर देन 0, वी से इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूनेस. एंड अगर एस के पी इज लेस देन 0 आया, we say it is negatively skewed. So right now we'll make a note of this part. Now अभी यहां पे हमने देखा एसकेपी मतलब इट इज बेस्ड ऑन मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर 3 टाइम्स ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. सो इसका मीनिंग है वी शुड नो हाउ टू फाइंड मीन, वी शुड नो हाउ टू फाइंड मीडियन, वी शुड नो हाउ टू फाइंड मोड, एंड वी शुड नो व्हाट, हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. बट स्टैंडर्ड डिविएशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑलरेडी डन.
in the previous chapter, that is measures of dispersion. So the topics are interrelated. So first chapter second chapter आता है तो third chapter बहुत ज्यादा easy हो जाएगा, and that is also related in the chapter number 5. So ये सब interconnected topics है. So you should understand first two topics and then you should go for this. So यहाँ पे हम देखते हैं मीन. अच्छा, अभी मीन ढूंढने के सो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर रॉ डेटा. रॉ डेटा मतलब कॉमा कॉमा करके जो डेटा दिया है उसको रॉ डेटा बोलेंगे. और यू कैन से द डेटा विच इज देयर विदाउट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट, रॉ डेटा. सो अगर रॉ डेटा है ना, अगर उसका मीन ढूंढना है, सो वी राइट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. समेशन एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्स, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फॉर डिस्क्रीट डेटा ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ. इसके कॉलम्स आ जाएंगे. अगर मुझे समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ ढूंढना है तो एक्स ऑलरेडी मेरे पास रहेगा, एफ रहेगा और एक्स एफ रहेगा. यस, ये उसका टेबल बनेगा. एंड देन वी हैव फॉर ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा. तो यहां पे भी आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ. बट यहां पे मेरा जो कॉलम रहेगा, सिंस ये ग्रुप डेटा है तो यहां पे क्लास इंटरवल रहेगा CI. क्लास इंटरवल के मदद से हम ढूंढेंगे क्लास मार्क, एंड दैट क्लास मार्क इज नथिंग बट व्हाट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो वो मुझे देगा क्लास मार्क, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, x. देन वी हैव f एज द फ्रीक्वेंसी, एंड उसके बाद आ जाएगा xf. तो ये चार हमारे कॉलम्स हो जाएंगे. So ये हो गया related to what, mean part. Now same way we need to go for what, median part. अच्छा, कभी कभी मीडियन का रिक्वायरमेंट है एंड कभी कभी मोड का रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन दिया है. अकॉर्डिंगली वी नीड टू यूज द फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड ये. तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट मीन का देखा, वैसे बेसिक कंसेप्ट फॉर मीडियन देखेंगे. फॉर रॉ डेटा, तो यहां पे लिखा फॉर रॉ डेटा. सो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट स्टेप इज अरेंजिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा. सेकेंड स्टेप हो जाएगा n कैलकुलेट करने का एंड चेक करेगा कि अगर n इज इक्वल टू ऑड है, देन we write median is equal to value of n plus 1 upon 2th observation, or you can say term. यहां पे हम लिखेंगे और n is equal to अगर सपोज even है, in that case मेरा मीडियन हो जाएगा equal to mid value of n by 2 and n plus 2 upon 2 ऑब्जर्वेशन और टर्म लिख सकते हैं. तो ये हो गया मीडियन फॉर रॉ डेटा. डिपेंडिंग ऑन ऑड केस रहेगा तो ये आएगा, इवन केस रहेगा तो ये फॉर्मूला आएगा. नाउ सेम वे विल फाइंड मीडियन फॉर, यहां पे आ जाएगा डिस्क्रीट डेटा. सो वी से यहां पे मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा प्रिपेयर 3 कॉलम्स. ये कॉलम हो जाएगा x, ये कॉलम हो जाएगा f, एंड थर्ड कॉलम हो जाएगा cf ऑफ लेस देन टाइम.
सेकेंड ये हो जाएगा कैलकुलेट समेशन एफ और कैपिटल एन बोलेंगे. एंड देन थर्ड वन इज मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. ये हो गया सेकेंड पार्ट, दैट इज डिस्क्रीट डेटा. सो नाउ डिस्क्रीट डेटा देखा, अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रुप डेटा. तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ग्रुप डेटा. सो जब ये केस आता है और मीडियन पूछा है, फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर 3 और 4 कॉलम्स. अरे 3 और 4 बोला क्यों? डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज एक्सक्लूसिव टाइप और इंक्लूसिव टाइप. अगर एक्सक्लूसिव टाइप है तो 3 कॉलम, इंक्लूसिव टाइप है तो 4 कॉलम. तो हम देखेंगे यहां पे कि फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर 3 और 4 कॉलम्स. यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर एक्सक्लूसिव. कॉलम्स विल बी इट इज CI, उसके बाद F एंड उसके बाद आ जाएगा CF ऑफ लेस देन टाइप. ये हो गया अगर एक्सक्लूसिव है. तो यहां पे देखो प्रिपेयर 3 कॉलम्स, 1 2 और ये तीनों है, और 4 कॉलम्स बोला है. तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर इंक्लूसिव टाइप. मतलब अगर इंक्लूसिव है तो 4 कॉलम्स आ जाएंगे. ये हो जाएगा CI, उसके बाद एक कॉलम एडिशनल आएगा विच इज कॉल्ड एज CB, दैट इज कॉल्ड एज क्लास बाउंड्रीज, या फिर उसको बोलते हैं AC विच इज कॉल्ड एज एक्चुअल क्लास. क्लास बाउंड्रीज बोलो, एक्चुअल क्लास बोलो और कंटिन्यूस क्लासेस बोलो, इट इज वन एंड द सेम. एंड वी हैव फ्रीक्वेंसी एंड उसके बाद आता है CF ऑफ लेस देन टाइप. ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1. सेकेंड इज कैलकुलेट समेशन F और कैपिटल N. ये हो गया सेकेंड स्टेप. एंड आफ्टर दिस वी से कैलकुलेट n/2 and mark n/2 which is just greater than or equal to CF of less than type. So n/2 को हम मार्क करेंगे एंड वो मार्किंग करेंगे that as a median class. And after marking that median class, fourth step and the last step is median का फॉर्मूला यूज करना है, which is median is equal to, it is L plus N upon 2 minus CF into H upon F आ जाएगा. यहां पे हम लिखेंगे where L is lower limit of median class, H is your class width, F जो है वो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. एंड n/2 जो है वो तो यहां पे जो कैलकुलेट किया वो वैल्यू आ जाएगा. एंड जो CF आएगा दैट विल बी CF ऑफ लेस देन टाइप विच इज जस्ट अबाउट द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो CF ऑफ लेस देन टाइप का वैल्यू है वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा. सो ये हो गया, हमने देखा मीन एंड मीडियन रिलेटेड कंसेप्ट. सो विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट. Now
we'll see the next part, that is mode. How to find mode for raw data. तो यहाँ पे लिखेंगे mode for raw data. So raw data बोला मतलब कॉमा कॉमा करके जो डेटा रहेगा दैट इज योर रॉ डेटा, और वी कैन से विदाउट फ्रीक्वेंसी जो डेटा दिया रहेगा दैट इज कॉल्ड एज रॉ डेटा. सो इन दैट वी से हियर the highest frequency will be considered as mode. सिया मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोला, हाईएस्ट वैल्यू ये वर्ड यूज नहीं किया, इट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. मतलब जो टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है that will be considered as your mode for raw data, not the highest value. तो ये हो गया mode for raw data. अभी यहां पे आएगा mode for discrete data. यस इधर भी आएगा. Here in the frequency column whichever value is highest will be considered as मॉडल क्लास. ये हो गया डिस्क्रीट डेटा. एंड अब आ जाएगा यहां पे फॉर ग्रुप डेटा. यहां पे आ जाएगा फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर 2 or 3 कॉलम्स. अगेन दिस इज बेस्ड ऑन किस पे होगा, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव टाइप पे. सो अगर यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एक्सक्लूसिव, तो ये हो जाएगा क्लास इंटरवल एंड उसके बाजू में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी. ये हो गया स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 इज इन फ्रीक्वेंसी कॉलम find the highest value and mark that as FM. That is maximum frequency जो रहेगा in the frequency column will be considered as what? FM. एंड उसके ऊपर जो रहेगा दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट, F1. एंड उसके नीचे जो रहेगा दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट, F2. सो जब ये कंडीशन आ गया यहां पे मैं लिखूंगा इट इज मोड विच इज इक्वल टू L प्लस ये हो जाएगा FM माइनस F1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ FM माइनस F1 माइनस F2 इनटू H. एंड यहां पे मैं लिखूंगा वेयर L इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. फिर आ जाएगा यहां पे FM विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F1 it is called as frequency of pre-model class and F2 जो है that is my frequency of post model class and H जो है that is my class width. Yes, we'll write यहाँ पे important note.
for median and mode for group data. Class interval should always be exclusive type. And अगर inclusive type है तो विल राइट यहाँ पे अगर यही ग्रुप डेटा प्रिपेयर 2 कॉलम तो ये आ गया, 3 कॉलम कब आएगा? जब वो एक्सक्लूसिव टाइप में नहीं रहेगा, मतलब वो इंक्लूसिव टाइप में रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर इंक्लूसिव टाइप। सो इन दैट केस ये हो जाएगा CI CB एंड आ जाएगा F। CB मतलब क्लास बाउंड्रीज, इसके जगह पे एक्चुअल क्लास भी लिखा जाता है, इसके जगह पे वी कैन ऑल्सो राइट एक्सटेंडेड क्लास ऑल्सो एंड कंटिन्यूस क्लास ऑल्सो। ये 4 में से कोई भी कंडीशन लिखा तो भी चलेगा। सो नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। नाउ सी, हमने मीन देखा, मीडियन देखा, मोड देखा। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो एसकेपी के लिए रिक्वायरमेंट है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। बट स्टैंडर्ड डिविएशन का पार्ट अगेन हम वापस नहीं देखेंगे यहाँ पे, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी डन इन योर चैप्टर नंबर 2। इसके पहले के चैप्टर में ऑलरेडी हमने किया हुआ है, सो वो आपके पास ऑलरेडी रहेगा। सो अगेन विल नॉट राइट ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ दैट। सो नाउ we have the second method of skewness ढूंढने का, that is called as Bowley's coefficient of skewness. So Bowley's coefficient of skewness is denoted as SKB, and now this Bowley's coefficient of skewness जो है that is based on the concept of quartiles. सो अगेन मैंने आपको पहले ही बोला था ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स आते हैं तो यहां पे इट इज SKB इक्वल टू क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है, सो इट इज Q3 माइनस Q2 एक ब्रैकेट में, वी हैव सेकेंड ब्रैकेट में Q2 माइनस Q1। यस, ये सेम चीज मैंने डिनोमिनेटर में भी लिखा। Yes, the only difference is यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। ठीक है, क्या लिखा? Q3 माइनस Q2 एक ब्रैकेट, Q2 माइनस Q1 दूसरा ब्रैकेट, सेम चीज न्यूमरेटर, सेम चीज डिनोमिनेटर। यस, ये दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन इन द न्यूमरेटर एंड प्लस साइन इन द डिनोमिनेटर। एंड अगर ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये बन जाएगा Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। एंड अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2। इधर ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो अपॉन में आ जाएगा Q3 माइनस Q1। सो SKB का ये एक फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। सी, ये बीच वाला जो स्टेप है वो सिंप्लीफिकेशन स्टेप है। एंड वी हैव द थर्ड फॉर्मूला विच इज सेम एज द सेकेंड फॉर्मूला, बट द ओनली डिफरेंस इज ये Q2 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्योंकि क्वार्टाइल 2 इज सेम एज योर मीडियन। सो SKB का एक, ये 2 एंड ये 3, सो 3 फॉर्मूलाज हो गए SKB के। सो ये हो गया SKB मतलब Bowley's coefficient of skewness। एंड अगेन ओवर हियर इफ आई राइट SKB इज इक्वल टू 0 तो इसका नेचर ऑफ द रूट आ जाएगा सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिक।
SKB is greater than 0, ये हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूनेस, एंड SKB is less than 0, ये हो जाएगा नेगेटिवली skewed या negative skewness. So with this, we make a note of this part now. Now over here, we have seen the entire concept. So we'll end the session over here. But before the next session, please revise the concept which we have seen in this session. That will help you for the next session. Thank you.